ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਲ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਲੈਂਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप डिस्कस करन जा रहे हैं इन रिलेशन एंड फंक्शन। इस तो पहला ये वाले रिलेशन अज के जो रिलेशन है पिछे वाले रिलेशन तो थोड़ा अलग है। पहला डील करते हैं वो की रिलेशन है। इस तो पहला जो असी प्रीवियस डे 1 टू डे 5 डील करे, डे 1 टू 5 तक जो डील करे दैट इज ए इज रिलेटेड विद बी। ए इज रिलेटेड विद बी इनू आपां किवें लिखते सी ए बी बिलोंग टू रिलेशन। जो पहले दिन च करे सी इट मीन A is related with B mean A ਦਾ B ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। A is related to B mean A ਤੇ B ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ A ਤੇ B ਦੋਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ। ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ B ਹੈ। A ਤੇ B ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਸਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲ ਕਰਿਆ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟੀਜਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਇੰਟੀਜਰ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਰੀਅਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਡੇ 6 ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ इनके विच एक पेयर दे नाल रिलेशन है। एक पेयर दा हाँ थोड़ी आवाज की डिस्टर्बेंस आ रही सी। एक पेयर दे नाल रिलेशन है। इनके मीन एवे कह देंगे एक दिस पेयर इज रिलेटेड विद दिस पेयर। अगे जो काम सी ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ A and B are in relation तो A ਤੇ B ਦਾ ordered pair ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। whenever A and B are in relation तो A ਤੇ B ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਪੇਅਰ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ AB, CD belong to relation। ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਪੇਅਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਸ ਪੇਅਰ, ਪੇਅਰ। हाँ जी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਹੈ। ਅੱਜ AB ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ A, B ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ n क्रॉस n। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ n क्रॉस n। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Let's start the question. Let R be relation in n cross n defined by this if and only show R is equivalence। show करना R की है equivalence relation वास्ते सब तो पहला अपना काम की है चेक करिए रिफ्लेक्सिव वास्ते। पहला R की है R relation पता है की है R relation एक ऑर्डर्ड पेयर दा एक ऑर्डर्ड पेयर दे नाल रिलेशन है। ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है सच दैट रूल की है पहला प्लस चौथा A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। थोड़ी जी गड़बड़ लगेगी आज वाले रिलेशन पकड़ते बड़े ध्यान नाल। हाँ जी इनू लिखा की है ਅਸੀਂ ਆ बोलते हैं A B एक एलिमेंट इज रिलेटेड विद CD दूसरा एलिमेंट A B इज रिलेटेड विद CD। रूल की दिता है में जे पहला प्लस चौथा फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस 3 होवे। अगर पहला चौथे का जोड़ दूजा तीजा होवे ता ये पेयर रिलेटेड विद पेयर ते पेयर दा रिलेशन है। हुन इथे रिफ्लेक्सिव च सब तो बड़ी गड़बड़ आ रही है। रिफ्लेक्सिव च की असि लेने हुंदे ने दो एलिमेंट अगे बोलदे आ रिफ्लेक्सिव च असि दो एलिमेंट लेने हुंदे आ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ 'ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੇਅਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੋ ਪੇਅਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਇੱਕ ਪੇਅਰ AB ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ AB। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ A, A ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ X, X
लेकिन ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪੇਅਰ ਕੀ ਨੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ AB ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ तो AB है आ एक एलिमेंट है इट मीन एक पेयर है हाँ जी हुण एक मिनट ध्यान नाल दसो कि A plus B पहला चौथा दूसरा कि A plus B plus A दे बराबर है या नहीं है तो उन्होंने कलर चेंज करके दस देना एरिया A plus B एरिया B एरिया A सॉरी आ रहा जी B आ रहा है मीन देखो कि एक पेयर लिया AB ते दूसरा पेयर भी लिया AB दोनों पेयर सेम लेने रिफ्लेक्सिव च अगे की करते सी दो एलिमेंट सेम लेंदे सी दो एलिमेंट दी बजाय हुन साडी डीलिंग होन लग पई पेयर च ਅਸੀਂ बोलांगे दो पेयर सेम लेने एक पेयर ਦਾ ਨਾਮ AB दूसरे पेयर ਦਾ ਨਾਮ AB कि बाकी दसो पहला प्लस चौथा दूसरा प्लस तीसरा आ रहा है कि ये है यस ये है अगर ये है अगर दो पेयर दे विच सुनो बड़े ध्यान नाल अगर दो पेयर दे विच एक पेयर ए दे विच पहला प्लस चौथा दूसरा प्लस तीसरा रूल हो जाए रूल वैलिड हो जाए तो ये दोनों पेयर आपस से की आ जाते हैं रिलेशन से आ गए हैं तो मैं की बोलांगा देयरफॉर AB इज रिलेटेड विद AB दा किदे नाल रिलेशन है AB दे नाल है अगर AB दा रिलेशन AB दे नाल है तो इट मीन इट इज रिफ्लेक्सिव तो मैं इथे की लिख देना ये की हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया एक छोटी जी गल ऐड करना जो ਤੁਹਾਨੂੰ कंफ्यूज कर दी है काफी बच्चे सोचते हैं सर ए लो पिछले वाले क्वेश्चन च ਅਸੀਂ दो एलिमेंट सेम ਲੈਣੇ ਸੀ एलिमेंट मतलब A ਅੱਜ एलिमेंट नहीं ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ दो पेयर सेम ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ पेयर मैं कंसीडर करे ने this pair AB and this pair AB both pair are same pair अगर same pair ਦਾ same pair ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ it is reflexive ਅੱਗੇ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕरें ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ AB ਇਹਦਾ ਨਾਮ AB ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ 2/2 ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ दोनों साइड पे की सेम है दोनों साइड पे मैट्रिक्स सेम है therefore it is a reflexive चले सेम एलिमेंट सेम पेयर सेम मैट्रिक्स दोनों साइड पे मैट्रिक्स एक या सेम है तो कभी नहीं बोलना सर A, A लो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ पेयर जो लेना है वही उधर पेयर लेना है चले एक ही हो गया सारा रिफ्लेक्सिव हो गया ओके रिफ्लेक्सिव तो बाद नंबर 2 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ सिमेट्रिक सिमेट्रिक की ਹੁੰਦਾ है एक ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ AB ਦਾ CD ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੰਸੀਡਰ AB is related with CD mean AB ਤੇ AB ਦਾ A ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ AB ਦਾ CD ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ CD ਦਾ BA ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ x ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ y ਨਾਲ ਹੈ that is mean xy ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ y ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ mean yx ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ x ਦਾ y ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ y ਦਾ x ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਅਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ AB ਦਾ CD ਨਾਲ ਹੈ CD ਦਾ AB ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੇ AB ਦਾ CD ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ AB ਤੇ CD ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲੱਸ ਚੌਥਾ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਲੱਸ ਚੌਥਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ और चौथे नंबर पे होगा देखा गया पहला प्लस चौथा इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा गलती हो गई तो जरूर दस देना चाहिए सही है अगर ABCD च रिलेशन है में फर्स्ट प्लस फोर्थ इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड जे दो रिलेशन च ने ते आ कंडीशन बन गई हुन मैं बनाना की चाहना एंड ते मैं चाहना CD इज रिलेटेड विद देखा जी की चाहना मैं CD मैं उल्ट करना है ना मैंने उल्ट करना है पहले तो लेफ्ट नु राइट बोलने लग गया चला अब देखो पहला तो लेफ्ट नु राइट बोल देता बस इतना काम करना था लेफ्ट नु राइट
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੋ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ BC ਨੂੰ C plus B ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ D plus C। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈਫਟ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ प्लस चौथा, ठीक है, समझ रहे हो। आ कौन हो गया साडा, हुन 1 मिनट इतना तक बन गया। सब तो पहली लाइन अगर तो कंफ्यूजन नहीं था कि ABCD रिलेशन च लैन दे मन ले, अगर ABCD रिलेशन च है तो तुसी की बोलते हो सर, पहले ते चौथे का सम बराबर होना चाहिए दूसरे ते तीसरे का। इनका मीनिंग ये भी हुन एवें बन गया, इट मीन पहला होएगा, एक कोई 4 नंबर होएगा, एक कोई 2 नंबर होएगा, एक कोई 3 नंबर होएगा। तो मैं बना लगा पहला C, दूसरा कौन है D, रिलेशन कितने से, तीसरा A, चौथा B। लो जी, अगर ये कंडीशन ही लग रही, इनका मतलब CD ते AB भी रिलेशन च होंगे, CD ते AB रिलेशन च क्यों ने, क्योंकि पहला प्लस चौथा, पहला प्लस चौथा, दूसरा प्लस तीसरा रूल है। अगर रूल है तो इट मीन, अगर रूल है तो वो रिलेशन च भी हो जाएंगे, ठीक है जी। रूल होने के नाल रिलेशन च भी हो गया, रूल है तो इट इज इन रिलेशन। अगर देखो कित्थों शुरुआत करी सी, AB रिलेटेड विद CD, एंड किथे करता CD रिलेटेड विद AB, तो एक ही बन गया सिमेट्रिक बन गया, सिमेट्रिक हो गया। पार्ट नंबर 3। आज वाले क्वेश्चन टफ ने, मैंने पता है थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप इनको रिवाइज जरूर कर पाएंगे, टफ ने ता कह रहा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव किवें होल्ड करांगे। कल मंडे तो नया चैप्टर शुरू करना है, संडे जिवें तुहानूं पता है कल संडे तुहाडा 12 बजे टाइम टेस्ट रखा गया है, डे 1 टू डे 6 जो भी टॉपिक कराया गया संडे 12 बजे तुहाडा टेस्ट है, ठीक है जी। तो मंडे तो नया टॉपिक, मंडे तो जो चैप्टर शुरू होना है इससे पार्ट है रिलेशन कर लिया, फंक्शन शुरू करांगे वो आसान पार्ट है। ट्रांसटिव की है, आप दो मनांगे, आप ये मनांगे AB दा रिलेशन CD दे नाल है, एक और की मनांगे CD दा रिलेशन EF दे नाल है। AB पहले दा इनु एक बोलोगे, इनु दो नहीं, आज जोड़े नु एक बोलना है। AB CD नाल है, CD EF नाल है, बनाना कि AB दा EF नाल। आज रिलेशन पता है कि सिंगल दा सिंगल नाल नहीं, पेयर दा पेयर नाल है। हाँ जी, अगर AB CD दा नाल है, इट मीन पहला प्लस चौथा इज इक्वल टू दूसरा प्लस तीसरा। इसका मतलब पहला प्लस चौथा, ओके, दूसरा प्लस तीसरा। तो जी पहला प्लस चौथा दूसरा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, CD ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ CD ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖਾਂ ਜੀ, A plus D, C plus F, B plus C, D plus E। हाँ जी, मैंने कैंसिल आउट कर लें तो C ਦੇ ਨਾਲ C कैंसिल, D ਦੇ ਨਾਲ D कैंसिल, एक ही बन गया AF is equal to B plus E। अगर एवें का इट मीन मिस्टेक इट इज A plus F। हाँ ये बन गया पहला, कौन पहला बन गया A, पहला चौथा दूसरा तीसरा। रिलेशन की है, रूल की है, अगर दो जने रूल च हों, पहला इत्थे लिखना है, फिर 4 नंबर इज इक्वल टू 2 नंबर, फिर 3 नंबर, पहला चौथा दूसरा अब दूसरा। रिलेशन की है 1 4 2 3 है, अरे लो जी हो गया। अगर देखो अगर ए है तो ए है, इन्हां दोनों से मैं आगे लिखा नहीं, अगर तुहानू समझ आ जाए तो तुसी जरूर देखो ए दोवें इफ एंड ओनली इफ ने। अगर ये दो पेयर दे विचकार रिलेशन है तो आ कंडीशन है, रिलेशन है तो कंडीशन है, कंडीशन है तो रिलेशन है। इट मीन अगर रिलेशन है कंडीशन बन गई, कंडीशन है इट मीन रिलेशन भी बन गया। तो की बन गया, शुरुआत की करे सी AB दा CD नाल, CD दा EF नाल, ते आ की गया AB दा EF नाल। यही तो साडा की हुंदा है, ट्रांजिटिव हुंदा है। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी। जेड़ा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आ जाए तो वो रिलेशन ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, इट इज इक्विवेलेंस। ये रिलेशन की बन चुका है साडा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, रिलेशन इन
n क्रॉस n मीन आज रिलेशन अगे ਹੁੰਦਾ ਸੀ रिलेशन ही ने n नेचुरल नंबर से ਸੀ लेकिन आज रिलेशन कितना है n क्रॉस n याद है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन पेयर इज रिलेटेड विद द पेयर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की है मैं एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ रिलेशन की है दिस ab पेयर इज रिलेटेड विद द cd पेयर ab पेयर इज रिलेटेड विद द cd पेयर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की है पहले का स्क्वायर प्लस चौथे का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर मीन अगर मैं गल करा केड़े दो पेयर च रिलेशन है आगे डीलिंग सिर्फ दो एलिमेंट च आज दूसरा सम है दिस पेयर इज रिलेटेड विद दिस पेयर अगर पहले का स्क्वायर प्लस चौथे का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर हां जी हुन देखते हैं इथे ये किवें हो जाता है सब तो पहला काम है साडा रिफ्लेक्सिव बनाना दा किवें बनाओगे रिफ्लेक्सिव आता है तुहानू बहुत वधिया ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਦਾ ਸੇਮ ਪੇਅਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਪੇਅਰ AB ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਪੇਅਰ ਦੋ ਪੇਅਰ ਐਨੀ ਪੇਅਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਚ AB ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ AB ਚ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ AB ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ AB ਆ ਜਾਏ सेम पेयर दा रिलेशन सेम पेयर नाल आ जाए तो ਅਸੀਂ ਕੀ आगे इट इज रिफ्लेक्सिव तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन किवें रिपीट जे मैनू कोई एक बच्चा कहता है सर मैं ਤੁਹਾਡੀ क्लास से एंटर करना चाहना प्लस 2 क्लास से एंटर करना चाहता मैं उन्होंने क्या अगर वीरे तू मेरी प्लस 2 क्लास से एंटर करना चाहता है तो सब तो पहला तू दस तुसी मैथ सब्जेक्ट रखा वो कहेगा हाँ मैथ सब्जेक्ट रखा है तुसी प्लस 1 क्लीयर की हुई है वो कहेगा हाँ मीन जे किसी ने क्लास से एंटर करना तो उन्होंने कंडीशंस फॉलो करनियां पैंदियां ने तो अगर एक पेयर सेम पेयर रिलेशन से चाहता है देखो AB दा रिलेशन सेम पेयर दे नाल रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव लेकिन अगर इन्हां दोवां ने रिलेशन से आना है तो इन्हां दोनों नु रिलेशन से आने वाली कंडीशंस फॉलो करनी है कंडीशंस की है आप देखो वही दो पेयर रिलेशन से हुंदे ने अगर पहले का स्क्वायर प्लस चौथे का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर अगर ये रिलेशन है कि वाकई दसो पहला प्लस चौथा की आ गल है कि A का स्क्वायर मेरा ध्यान देखिए जी प्लस B इधर वाली प्लस B का स्क्वायर दूसरा B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है कि आ चीज है अगर ये वैलिड है पहले का स्क्वायर चौथे का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर वैलिड है इट मीन पहला चौथा ये B पता है केड़ी वाली है दूसरा पहला चौथा ये चौथे नंबर वाली B मैं इथे लिख देना डार्क तो समझ ये पहले नंबर 4 वाली पहला चौथा आ रहा ठीक है जी दूसरा तीसरा आ रहा तीसरा ठीक है अगर आ चीज वैलिड है अब देखिए ध्यान दो जने रिलेशनशिप प्लीज आ चीज नु एनालिसिस कर लो मैं बार-बार यही चीज पे फोकस दे रहा वही दो पेयर रिलेशन च ने जदों पहले नंबर वाले का स्क्वायर इधर नंबर 4 वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर ते तीसरे वाले का स्क्वायर इथे दो पेयर ने बाकी यह चीज वैलिड है अगर आप वैलिड है तो इट मीन पहला चौथा दूसरा तीसरा एक ही आ गया रिलेशन से आ गया जे रिलेशन से आ गया मैं जान के एंड पहले लिखता सी इट इज रिफ्लेक्सिव तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव नंबर 2 रिफ्लेक्सिव तो बात अपनी डीलिंग है सिमेट्रिक ते की है एक पार्ट मान के चलोगे तुसी की मान के चलोगे AB इज रिलेटेड टू CD AB इज रिलेटेड टू CD मानोगे CD इज रिलेटेड टू AB बनाओगे मीन x दा y नाल है y दा x नाल बनाओगे इथे पेयर है AB CD इट मीन पहले दा स्क्वायर प्लस चौथे दा स्क्वायर अगर ये रिलेशन च है अगर रिलेशन है इट मीन कंडीशन भी है पहला स्क्वायर चौथा स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा स्क्वायर प्लस तीसरा स्क्वायर रिलेशन है तो कंडीशन है हम सिमेट्रिक वास्ते तो हम पता उल्टा बनावांगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर फिर इनु करता c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनु ऑपोजिट करते हैं हुन ये बन गया पहला अगर देखो कंडीशन है एक ही चीज है कंडीशन देखो कितना अच्छा बोलिया गया जे रिलेशन है जे ए रिलेशन है तो इस रिलेशन की कंडीशन है अगर रिलेशन है तो कंडीशन है हुन एक नवी कंडीशन है नवी कंडीशन
जे नवी कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग रिलेशन च बनेगा, ये बनेगा पहला चौथा, पहला चौथा दूसरा, आ कौन है तीसरा, आ चौथा। ठीक है, अगर कंडीशन है तो उनके अकॉर्डिंग रिलेशन च एलिमेंट भी आ गए। देखो शुरुआत की AB is related to CD, बन के गया CD is related to AB, it mean it is a symmetric, sorry it is a symmetric, it is symmetric। थोड़ा टफ है लेकिन विद टाइम आप एनालिसिस कर लेना। प्लीज 2 बार ये वीडियो जरूर देखिया जी क्योंकि टफ है। आम तौर पे हर एक बच्चे को टॉपिक टफ लगता है लेकिन अगर तुम इसे 2 बार देखोगे आराम नाल करोगे फिर समझ आ जाएगी। नंबर 3 की है ट्रांसटिव। ट्रांसटिव वास्ते तुसी की करोगे, ट्रांसटिव वास्ते एक AB दा रिलेशन देखोगे CD दे नाल, एक CD दा रिलेशन देखोगे EF दे नाल, AB दा CD नाल, CD दा EF नाल, तो बनाओगे कि AB दा EF दे नाल। हुन उनदे वास्ते तुसी की करोगे, AB इज रिलेटेड टू CD। अगर ये रिलेशन च है, रिलेशन है तो इसकी कंडीशन की पहले दा स्केयर प्लस चौथे दा स्केयर इज इक्वल टू दूसरे दा स्केयर प्लस तीसरे दा स्केयर। हुन ये रिलेशन है, रिलेशन तो इसकी कंडीशन भी है, रिलेशन है तो कंडीशन है, कंडीशन है तो रिलेशन है। हाँ जी, रिलेशन है तो कंडीशन में पहला प्लस चौथा इज इक्वल दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है जी, ऐड कर दो प्लीज ना। ट्रांसटिव वास्ते ऐड, सिमेट्रिक वास्ते लेफ्ट नु राइट, फिर पहले नु दूजा, दूजे नु पहला। हाँ जी, सिंपली ऐड करो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर c स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। हाँ जी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। c स्क्वायर कैंसिल आउट, d स्क्वायर कैंसिल आउट। देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये कोई नवी जी कंडीशन बन गई। तो तुसी कहोगे सर जे ये कंडीशन है तो इन दे कंडीशन दे अकॉर्डिंग कोई रिलेशन भी है, रिलेशन दे नाल कंडीशन होता है। देखो कि पहला पहला चौथा, पहला चौथा दूसरा रिलेशन 1 4 2 3, 4 है 2 है 3 मीन F रिलेशन से आगे मीन जी कंडीशन सी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ AB ਦਾ CD ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, CD ਦਾ EF ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ, CD ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਮਨ ਪੇਅਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ X is related to Y, Y is related to Z। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ X ਦਾ Y ਨਾਲ, Y ਦਾ Z ਨਾਲ, X ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ Z ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੇਅਰ ਨਾਲ AB ਦਾ CD ਨਾਲ, CD ਦਾ EF ਨਾਲ, CD ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਟਿਵ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਨੋਟ ਇਟ। थोड़ा टफ है लेकिन इनू बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, एक छोटा जिहा टॉपिक है जो अपना पेंडिंग सी ਉਹਨੂੰ डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट का मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ क्लास पा के C आके सॉलिड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ए। एक्चुअल च मान लो एक एलिमेंट है ए दे नाल जिन्ने भी रिलेशन च ने ना सारे दे सारे एलिमेंट ओनू बोलदे इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए इनू बोलदे क्लास ऑफ एलिमेंट ए। एक्चुअल च की हुंदा ए हुंदा सेट। ये सेट इहदे च सारे दे सारे एलिमेंट लेने ने कैपिटल ए चो, सारे दे सारे एलिमेंट कैपिटल ए चो लेने ने सच दैट आ लिखा सच दैट जिन्हां दा A ते नाल रिलेशन होए। मीन क्लास ऑफ A, क्लास ऑफ A दा मतलब कि सारे दे सारे X लेने ने, सारे दे सारे वो एलिमेंट लेने ने कैपिटल A चो, सच दैट ओ X लेने ने जिन्हां दा A दे नाल रिलेशन होए। पढ़दे हैं इफ R is a relation on set A। R की चीज है इक्विवेलेंस रिलेशन है, नाल इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। then equivalence class of element, class की है is a set of all element related with A। एग्जांपल ना दे देना, जस्ट सपोज करो मैं एक एग्जांपल कह देती R। हाँ जी, जस्ट सपोज करो एग्जांपल कह देती R। R दे विच की लिख लिया
एलिमेंट लिख लिया 1 2 2 3 3 1 4 2 जस्ट सपोज करो मैं ऐਵੇਂ करके जा ਰਿਹਾ शायद 1 3 ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 1 3 ਲਿਖ ਦੇਣਾ 2 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 2 ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 4 2 ਦੇ ਨਾਲ अब 4 2 एक बार छोड़ देना मैं थोड़े ਜਿਹੇ एलिमेंट ले लेता दैट इज नाउ 2 2 भी लिख लेना नाल 3 3 भी लिख लेना जस्ट सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा मेरी एग्जांपल ध्यान ना 1 2 लिखता 2 1 भी रह गया और 2 1 भी लिख देते हैं लो जी 1 2 लिखता 2 3 लिखता 3 2 लिखता 1 3 लिखता ओके जस्ट सपोज करो सारे के बड़े सारे एलिमेंट एनी एग्जांपल देती है तो हुन तो पूछे क्लास ऑफ 1 की है क्लास ऑफ 1 मीन 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਇੱਕ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਇੱਕ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਲਾਸ ਆਫ 1 ਕਲਾਸ ਆਫ 1 ਮੀਨ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵੀ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਵੀ ਹੈ 1 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਹ ਕਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अगर मैं एक और एग्जांपल दें नवी एग्जांपल दे देना मान लो आ रिलेशन है ਉਹਦਾ ਨਾਮ 1 1 2 2 ਤੇ 3 3 जस्ट बस इतना थोड़ा जिहा और ऐड करन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ 1 3 3 1 बस बहुत है ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ 1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਇੱਕ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਆਫ 2 ਕੀ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ 2 ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਲਾਸ 3 ਦੀ ਕੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਦੀ 3 ਆਪ ਹੈ ਇੱਕ 3 ਦੀ 1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਲਾਸ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਦੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ बस बच्चे अज के दिन तक तो इन्हों का टॉपिक है आप 6 दिन रिलेशन वाला टॉपिक कराया मंडे को आप नया टॉपिक शुरुआत कर लगे होप सो तो थोड़ा टफ तो जरूर लग रहा होगा इन्हों को तो मैंने पता है लेकिन अगर तुम इस टॉपिक में अच्छे तरीके रिवाइज करोगे थोड़ा टेस्ट वास्ते प्रिपेयर करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा कुछ फिर भी डाउट हो तो सानू जरूर डाउट सेंड कर सकते हो सानू कमेंट जरूर कर सकते हो जो क्वेश्चन नहीं समझ आया अगर थोड़े नवा क्वेश्चन है तो भी तुम जरूर डिस्क्रिप्शन से या कमेंट से दे दिया करो ताकि असीं वो तुहानू सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू जी।